عبداللہ ابن عمر نے حدیث کے الفاظ کچھ لکھے، میں وہ وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، جس پر سارے فرقوں کا اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا۔ اللہ کے نبی نے پیشنگوئی کی، سرکار نے غیب کی خبر بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں، قوم بنی اسرائیل اختلاف کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، موسیٰ کے جو ماننے والے تھے، اختلاف کیا ان لوگوں نے، آپس میں بہت اختلاف ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 ملتا، لیکن میری امت میں تو ایسا اختلاف ہوگا کہ نبی فرماتے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ وہ تو 72 میں بٹے، لیکن میری امت 73 میں بٹیں گی، ایک فرقہ زیادہ ہوگا میری امت میں۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ نبی کے ایک ایک جملے پہ غور کرے، میں سمجھتا ہوں ہدایت کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے۔ اللہ اگر کسی کو توفیق دے دینا تو بس یہ ایک حدیث کافی ہے کہ وہ جان لے کہ کون سی جماعت حق ہے۔ اگر ہم اس جماعت میں ہیں تو فبیہا، اور اگر اس جماعت میں نہیں ہے تو پھر ہم بھٹک چکے ہیں، ہمیں اس جماعت میں آ جانا چاہیے۔ کلہم فی النار، نبی نے کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، صرف ایک جماعت ہوں گی، سرکار کہتے جو جنت میں جائیں گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی بتا دیجیے، سرکار ہمیں بتائیے جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے اس جنتی جماعت کی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، سرکار نے کہا جنتی جماعت کی نشانی ہے کہ جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو جماعت اس عقیدے پر ہوں گی وہی جنت میں جائیں گے۔ لیکن اب دیکھیے اختلاف شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ اب حدیث تو سنانے سے کام نہیں چلے گا نا، یہ حدیث ہر فرقہ سناتا ہے۔ پرابلم تو یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات بھی مختلف الفاظوں میں حدیث سناتے، صحابی کی جگہ وہ اہل بیت کر دیتے، کہتے کہ صاحب جو اہل بیت کو مانے گا وہی جنتی ہے، لیکن اہل بیت بھی صحابی ہی ہے، علی بھی صحابی ہے، امام حسن بھی صحابی ہے، حسین بھی صحابی ہے، صحابی ہی ہے۔ چلیے بہرحال سب کے نزدیک متفق علیہ، لیکن پھر ایک اختلاف نیا شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں تو سب نے اتفاق کر لیا کہ حدیث پر ہمارا اتفاق، حدیث پر ہمارا یقین، حدیث پر ہمارا ایمان، مگر ہر فرقہ کہتا ہے جنتی میں ہوں۔ پوچھا جاتا ہے دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے صاحب کہ ہم صحابہ رسول کے عقیدے پر ہم ہیں۔ تو میں کچھ جماعتوں کے نام لے لوں، اگر آپ برا نہ مانیں، جو جماعتیں آج جن ناموں سے جانی جاتی ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، جو جماعتیں جانی جاتی ہے، دیوبندی حضرات ہے، دیوبندی ایک جماعت ہے، کہتے جنتی ہم ہیں، دلیل کہتے ہم ہی صحابہ کے اور رسول کے عقیدے پر ہے۔ تبلیغی جماعت والے حالانکہ دیوبندی کی شاخ ہے، لیکن وہ وقت آنے پہ کہتے دیوبندیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب کو مانتے، تو اس لیے میں ان کو علیحدہ گنتا ہوں، وہ کہتے جنتی ہم ہیں۔ کہا کیا دلیل؟ کہا صحابہ کے اور رسول کے عقیدے پر ہمیں، صحابہ بھی تبلیغ کرتے تو ہم بھی تبلیغی کرتے ہیں، کہا ہم بھی جنتی۔ اچھا چلو اہل تشیع حضرات سے کہا نبی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل البیت، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت، جب تک اس کو تھامے رہوں گے گمراہ نہیں۔ ہم نے اہل بیت کو بھی تھاما ہے، کتاب اللہ کو بھی تھاما ہے، مطلب اصحاب کو بھی تھاما ہے، اور قرآن اور عقیدہ صحابہ کو، ہم جنتی۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آگے بڑھیں تو جماعت اسلامی والے کہتے ہیں ہم جنتی، غیر مقلدین کہتے ہیں ہم سے بڑا تو کوئی جنتی نہیں ہے روئے زمین پر، کیوں؟ ہم تو سب خرافاتوں سے، ہم تو اماموں تک کو نہیں مانتے، صرف صحابہ رسول، ہم تو امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں پوچھنے کے لیے تیار۔ اچھا سب جنتی، اب میں بھی بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا ہم بھی جنتی، کہا دلیل؟ ہم بھی عقیدہ صحابہ رسول پر چلتے ہیں، لیکن دعوے کے بعد دلیل تو چاہیے نا۔ اب دلیل کے لیے میں کہوں دیکھیے فاتحہ صحابہ بھی دلاتے تھے، نبی بھی دلاتے، اس لیے ہم فاتحہ والے لوگ ہیں، ہم فاتحہ دلاتے تو کہیں گے حدیث ضعیف ہے، ارے یا اللہ پھر کیا کریں؟ وہ کچھ پیش کریں گے، ہم انکار کریں گے، کہیں گے دیکھیں ہم صحابہ رسول کے عقیدے پہ چلتے ہیں، اہل حدیث کہیں گے سرکار اور صحابہ رفع دین کرتے تھے، ہم بھی رفع دین کرتے، ہم نے کہا رفع دین منسوخ ہو گیا، پھر اختلاف چالو، یعنی جو بھی پیش کریں گے کہیں نہ کہیں اختلاف آئیں گا۔ تبلیغی جماعت والے کہیں گے ہم جماعت میں جاتے تبلیغ کرتے، میں کہوں گا صحابہ رسول اس طرح نہیں جاتے تھے جیسے آپ جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو ہم کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، فیصلہ کیسے ہو؟ تو میں نے سوچا چلو اسی حدیث پہ غور کرو، اس پر سب تو متفق ہو گئے نا، اس حدیث پر تو اتفاق ہو گیا، تو کیوں نہ اسی متفق علیہ حدیث پر تلاش کیا جائے، اسی میں غور کیا جائے، کیا اس میں جنتی فرقے کی نشانی ہے؟ وہ تو ہے، دکھ رہی ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا، لیکن کون؟
तो इसी हदीस पर गौर करें। तो अब मैंने बड़ी गौर किया तो मैंने देखा कसम खुदा की इस वक्त इस हदीस का कोई मुस्ताक है, इस हदीस के तहत कोई जन्नती है, तो वो बरेलवी मकतब फिक्र अहले सुन्नत वल जमात, जिसको आज मसलक आला हज़रत कहते हैं। अब दलील क्या है कि भाई जिसको आज मसलक अलग आज कहते हैं, याद रखिए कोई नया फिरका नहीं है, हमने अपने आइडेंटिटी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये ना समझे कि मसलक के अलग, कुछ लोग झूठ बोलते, कहते मौलाना अहमद रजा एक नए फिरके के बानी थे। मैंने कहा ताज्जुब की बात है ना, उन्होंने नब्वत का दावा किया। उनकी तो अकीदत का ये हाल है कि अगर नाम लिखते तो कहते मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, अब्दुल मुस्तफा। जो गुलाम हो, गुलाम दर गुलाम हो, उनकी गुलामी का तो यह हाल है कि गौसे पाक के बारे में वो कहते हैं तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जो गौस पाक का गुलाम बन रहा वो फिरके का बानी कैसे हो सकता है? तो ये प्रोपेगेंडे झूठे किए जा रहे। तो मसलक के आलत कोई नया मसलक नहीं है, कोई नया मजहब नहीं है, ये हमने अपनी आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल किया। क्यों किया उसकी वजाहत बाद में करेंगे। लेकिन बहरहाल मैंने एक जुमला कहा है, और जुमला ये कहा मैंने कि हम अहले सुन्नत वल जमात जिसको आज मसलक के आला हज़रत के नाम से नामजद किया जाता है वो जन्नती। आप पूछेंगे नहीं कि भाई कैसे, तो इसी हदीस पे गौर कीजिए। देखिए पूछते हैं, आइए हदीस पे गौर करें। सरकार कह रहे इन्ना बनी इसराइला तफर्रकत अला सिंताइनी व सबाइना मिल्लता, फरमाया कि कौमे बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे। तो ये रसूल से पहले की उम्मत थी, पहले की उम्मत थी। सरकार ने इस उम्मत को बज़ाहिर देखा नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बज़ाहिर मौजूद नहीं है, मगर सरकार खबर दे रहे हैं कि पिछली उम्मत 72 में फिरकों में बटी। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईना मिल्लता, फरमाया मेरी उम्मत 73 में बटेंगी, अभी नहीं बटी है, आगे बटेंगी। पहले की भी खबर दी, हाल की भी खबर दे रहे हैं, मुस्तकिल की खबर दे रहे हैं। तो बात समझ में आ गई कि जब नबी माजी की भी खबर दे, हाल भी मालूम हो, मुस्तकबिल भी मालूम हो, इसको कहते हैं इल्म गैब। तो अब जो नबी का गैब मानता है वही है जन्नती। अब नबी के गैबी का इनकार कर दिया तो हदीस का मुस्दाक कहां बना? एक तरफ कहता नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो जब नबी को तेरे अकीदे के मुताबिक दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो फिर ये कैसे मान लिया कि 73 होंगे और तू जन्नती? ये फिर कैसे माना? ये मानना भी गैब है। तो अब जो नबी के गैब को मानता है वो जन्नती। और आगे देखिए सरकार ने कहा कुल्लुहुम फिन्नार। अब ये अकीदा नबी बता रहे हैं अपना कि मेरा अकीदा सुन लो, और कहा मेरे अकीदे और मेरे सहाबा की जो अकीदे पर होगा वो जन्नती। कहा कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। तो जहन्नम में क्यों जाएंगे? वजह यह है कि आगे खुद वजाहत कर दी, जन्नत में वो जाएगा जो मेरे अकीदे पर, मेरे सहाबा के। तो ये 72 वो होंगे जिनका अकीदा रसूल और सहाबा के मुताबिक नहीं होगा। तो जो नबी के और सहाबा के अकीदे से इनराफ करे, गोया उनका अकीदा कुफरिया होगा, वो कुफर के अकीदे को रखेंगे, समझते इस्लाम को होंगे, समझ रहे होंगे हम मुसलमान हैं, लेकिन अकीदे में खोट होगा। तो नबी ने कहा कि वो 72 जहन्नम में जाएंगे। कितने जहन्नम में जाएंगे? 72। यानी दूसरे लफ्जों में नबी ने कहा 72 काफिर हो जाएंगे, एक मुसलमान रहेगा। तो नबी ने बिला झिझक 72 को काफिर कह दिया, 72 को कहने में ना हिचकिचाया। और जो 2-4 को कहने में हिचकिचा रहे, समझ में आ गया अकीदा रसूल का नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब उनसे कहा जाए देखो ये गुस्ताखी है। कहते हम किसी काफिर को भी काफिर नहीं कहते, तो इनको क्यों कहे? तो मैंने कहा नबी ने तो 72 को बेझिझक कह दिया, तो 2-4 को कहने में कितना हिचकिचा रहा है? तो मालूम हो गया जब हिचकिचाहट है तो तेरा अकीदा नबी वाला नहीं है। अब साहबा का भी अकीदा देके सरकार ने कहा जो मेरा और मेरे साहबा का अकीदा। तो साहबा का अकीदा क्या? नबी ने कहा 72 फिरके में हो बटे बनी इसराइल। तो साहबा ने कहा रसूलल्लाह आपको गैब कैसे मालूम? आपको तो दीवार के पीछे का नहीं मालूम। ये नहीं कहा, साहबा ने सुना और कहा अल्लाह के नबी आप खबर दे रहे हम तस्दीक करते। कहा 73 होंगे। तो साहबा ने इसकी भी तस्दीक की। कहा अल्लाह के नबी आपकी जबान से वही इलाही का नुज़ूल होता है, आप वही के तहत कहते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल आप वही के बगैर नहीं कहते। अब ये है आपने कहा 73 होंगे, तो हमने यकीन कर लिया ना वो 72 हो सकते हैं ना 74 हो सकते हैं।
73 तो 73। तो अब साहबा ने देखा, नबी ने कहा तो ये परफेक्ट बात है, अब इस उलझान में नहीं रहे। अल्लाह के नबी, इसका क्या अकीदा होगा हमें बताओ, हर फिरके का अकीदा बताओ। साहबा ने मिजाज दिया कि जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछना नहीं। जन्नती जमात की बात करो तो कहा अल्लाह के नबी हमें उन 72 जहन्नमियों से क्या करा जो जहन्नम में जा रहे, जो जन्नत में जाने वाला है उसकी निशानी बता दीजिए, उसकी निशानी बताइए। तो नबी ने सिर्फ ये कह देते तो काफी था। सरकार कहते जो मेरे अकीदे पर होगा वो जन्नती। फरमाया नहीं, जो मेरे और मेरे सहाबा के, तो सहाबा को भी शामिल किया। बताया कि सिर्फ मेरा अकीदा काफी नहीं, मेरे सहाबा का भी अकीदा लो। तो अकीदा सहाबा से क्या लेना है, सारे अकीदे तो नबी ने बताए हैं, सारे अकीदे तो नबी ने दिए हैं, तो सहाबा से लेना क्या है। ताज़ीम नबी कैसे की जाती है सहाबी बताएंगा, रसूल का अदब कैसे किया जाता है सहाबी बताएंगा, और इन सहाबी के नक्शे कदम पर चलोगे तो नबी तक पहुंचोगे। और इसी को हमारे इमाम ने कह दिया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो नक्शे कदम पर चलने की बात हो रही है। तो अब इसी हदीस में तो साबित हो गया कि अहले सुन्नत वल जमात ही हक जमात है। तो अब जो इस मनहज से हटा है, इस तरीके से हटा है, उसको चाहिए कि वो इस रास्ते पर लौट आए। और इसी को कुरान ने कहा, वा तसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ लोगो अल्लाह की तुम सब मिलकर रस्सी को मजबूत थाम लो, तफर्रकबाजी मत करो, फिरकों में ना बटो। अब कमाल तो ये कि जो बढ़ गए वो हमें ये हदीसों आयत सुना के कहते हैं कि देखो साहब अल्लाह कह रहा है फिरकों में ना बटो। मैं कहता हूं ये बताओ, गरीब नवाज पहले आए थे कि तू पहले आया है? दाता गनबख्श लाहौरी पहले आए हैं कि तू आया है? तो फिरका तूने हटाया, तू दाता से हटा, तू गरीब नवाज से हटा, गौसे पाक की 11वीं से तूने इनहराफ किया, गौसे पाक को तूने छोड़ा। तो जिसने छोड़ा है वो तफर्रकेबाजी का शिकार हुआ है। तो अब जो छोड़ा है उससे कहा जाएगा तू अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम। तो अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी कोई आसमान से लटक नहीं रही है, अल्लाह की रस्सी नहीं कि जहां सब पकड़ ले। तो अल्लाह की रस्सी क्या है? तो इमाम जाफर सादिक फरमाते, जिसको इमाम जलालुद्दीन सूती ने दुर्र मंसूर में लिखा, फरमाते नहनो अहले बैत, हम अहले बैत हैं। तो अब हमने सारे अहले बैत को समाज पर पकड़ लिया। कहा जितने नबी के घर वाले, गौसे आजम भी नबी के घर वाले, इनको भी नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज नबी के घर वाले, इनको भी नहीं छोड़ेंगे, मखदूम अशरफ सिमदानी इनको भी नहीं छोड़ेंगे, शाह रसूल इनको भी नहीं छोड़ेंगे। हर बुजुर्ग को पकड़ते हुए अहले बैत को पकड़ा हमने। और जब इनको पकड़ लिया तो हमने गोया अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया। और अल्लाह की रस्सी को पकड़ा तो कभी हम इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होंगे। हमने मां अना अलही सहाबी को भी लिया और अहले बैत को भी लिया। लेकिन कुछ लोगों ने अहले बैत लिया, सहाबी छोड़ दिया। कुछ लोगों ने सहाबा लिया तो अहले बैत छोड़ दिया। कुछ ने दोनों को लिया तो नबी के इल्म गैब का इनकार कर दिया। मतलब कुछ लिया कुछ छोड़ा। और अहले सुन्नत वो है कि जिसने कुछ नहीं छोड़ा, सब लिया। तो जिसके पास सब है, देखिए इंसान भी उसी दुकान पे जाना पसंद करता है जहां सब मिल जाए। ऐसी दुकान पे जाएगा कि बोलेगा यार वहां कुछ मिलेगा, फिर कुछ के लिए वहां जाना पड़ेगा, कुछ के लिए बोलेगा ऐसा करो यार एक ही दुकान पे चलो जहां सब मिल जाए। तो आजकल मिजाज बन गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं जहां पर सब मिल जाए। तो अहले सुन्नत एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां सब मिलता है। अहले बैत यहां मिलते हैं, सहाबा यहां मिलते हैं, औलिया यहां मिलते हैं, तरीकत यहां है, मारिफत यहां है, हकीकत यहां है, शरीयत यहां है, मुरीद यहां है, पीर यहां है, सब यहां है। खुदा की कसम जन्नत यहां है। अब इनेराफ किन लोगों ने किया? इनेराफ वो करता है जो अपनी असल और अपने बुजुर्गों को छोड़ता है। मैं सिंपल सी मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए। एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं। एक बाप है, उसके कितने बेटे हैं? 4। एक बेटे ने शादी किया, बीवी हुई, बीवी को लिया, बीवी को लेके अब्बा और अम्मी को छोड़ के चला गया, अलग घर बना के रह रहा है। अब बाप के पास 3 बेटे हैं, माँ बाप के पास। फिर एक बेटे ने फिर शादी किया, फिर बीवी को बल लिया, घर छोड़ के चला गया। तीसरे बेटे ने शादी किया, बीवी को लिया, घर छोड़ के चला गया। आखिरी छोटा लड़का जो है बड़ा फर्माबरदार है, शादी भी किया मगर अपने बाप को नहीं छोड़ता, अपनी माँ को नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी बीवी को पाबंद करता है कि मेरे वालिद की खिदमत कर, वालिदा की खिदमत कर। बताइए गद्दार कौन है? वो 3 के या आखिरी?
लेकिन है ना, जिन्होंने बाप को छोड़ा, तो जो बाप को छोड़ता है, असल को छोड़ता है, वो गद्दार होता है। तो अहले सुन्नत वल जमात की हिंदुस्तान में असल थे गरीब नवाज। तो अब जिसने गरीब नवाज को पकड़ा है वो अपनी असल से जुड़ा है, और जिसने गरीब नवाज को छोड़ा है वो असल से भटक गया है। समझ रहे हैं ना? तो अब आइए मैं कुछ रोशनी में बताऊं कि किन लोगों ने औलिया को कैसे छोड़ा है। महीना गौसे आजम का चल रहा है, मैं बताऊंगा गौसे आजम को तो एक जमाना हुआ छोड़ चुके हैं ये, रसूलुल्लाह को तो एक जमाना हुआ छोड़ चुके हैं, अब गरीब नवाज को भी छोड़ दिया है इन्होंने, और छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं गौसे आजम को क्या छोड़ा, गरीब नवाज को कैसे छोड़ा, उससे पहले मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्लिप से पहले मैं ये बताना चाहता हूं, एक हदीस शरीफ पढ़ दूं ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि मकाम विलायत कितना बुलंद होता है। इस जमात से जो जुड़ा होता है वही हकीकत पे जुड़ा हुआ है अहले सुन्नत वल जमात से। आइए दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं आपको हदीस पेश करूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिल मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। आइए हदीस पाक से फिर मैं आपको एक हदीस दिखाता भी हूं इंशाअल्लाह कि मकाम विलायत कितना। मैंने कहा हमने सबको पकड़ा है, हमने सबको पकड़ा। ये हदीस हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत है। हजरत अनस से रिवायत है, कहते हैं अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हजरत अनस से रिवायत है, कहते हैं सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार से पूछा गया, अनस इब्न मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी बताइए, हमें खबर दीजिए सरकार कि आले मोहम्मद कौन है। सरकार से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी आले मोहम्मद कौन है। आले मोहम्मद यानी आपके खानदान वालों में और कौन कौन है। तो एक खानदान वाले तो वो है जो खून के रिश्ते के एतबार से हैं, एक वो है जो उर्फी तौर पर या नबी के फजल करम से सरकार ने उनको भी अपनी खानदान वाला फरमाया है। जैसे होता है ना, हमारे पड़ोस में कोई रहते हैं, इतना दोस्तान हो गया, हम कहते हैं अरे भाई हमारे घर वाले हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो सरकार से पूछा गया रसूलुल्लाह आले मोहम्मद कौन है। एक तो आले मोहम्मद वो है सरकार के जो इमाम हसन इमाम हुसैन की नस्ल से, इनके अलावा भी कोई आले मोहम्मद है। तो फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुल्लु तक़ीन व तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। सरकार ने फरमाया हाँ सुनो, आले मोहम्मद हर वो शख्स है जो साहिब तकवा है, जिसने भी तकवा इख्तियार किया वो आले मोहम्मद है। और फिर कुरान की आपने आयत करीमा पढ़ी इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह फरमाता है अल्लाह के वली नहीं, अल्लाह के औलिया नहीं, मगर वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। तो यहां फरमाया कि वली कौन, जो साहिब तकवा है। तो दूसरे लफ्जों में गोया नबी पाक ने फरमाया कि जो वली है मेरी उम्मत का, अगरचे उसका नसब कोई भी हो, लेकिन वो आले मोहम्मद है, वो मेरी आल में है, वो मेरे खानदान वालों में से है। और जो आले मोहम्मद है उनसे वाबस्ता हो जाओ ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए। आइए अब एक चीज मैं ये हदीस पेश करना चाह रहा हूं, यह है सुनान इब्न माजा। आपको मॉनिटर में दिख रही है सुनान इब्न माजा, ये सियासत्ता के अंदर शामिल है। इसका जिल नंबर इसकी 2 है, जिल नंबर 3 है, और इसकी हदीस नंबर 4115। इमाम इब्ने माजा पूरी सनद बयान करते हुए ये सनद पहुंचाते हैं हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत मुआज इब्ने जबल से वो रिवायत करते, कहते हैं अन मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, मुआज इब्ने जबल ने रिवायत किया, फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला अख़बिरुका अन मुल्किल जन्ना। सरकार कहते हैं साहबा से, मेरे साहबियों क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं कि जन्नत के बादशाह कौन है। देखिए सरकार जन्नती फिरके की, जन्नती जमात की निशानी बता रहे हैं, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वो जन्नत में होगा। अला उखबिरुका अन मुल्किल जन्ना, फरमाया क्या मैं जन्नत के बादशाहों की तुम्हें खबर ना दूं। कुल तो बला, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी जरूर हमें जन्नत के बादशाहों की खबर दीजिए। काला रजुलुन ज़ईफुन, फरमाया जन्नत के बादशाह वो होंगे जो बज़ाहिर ज़ईफ है, कमजोर है, बज़ाहिर नातवा है,
मुस्तज़अफ़ुन, और जिनका हाल ये है कि बदहाल है, जिनके लिबास को तुम देखोगे, जिनकी हालत को देखोगे तो बदहाल नजर आएंगे। ज़ू तिमरैन, लिबास उनका फटा हुआ बोसीदा पुराना है, लिबास पुराना नजर आ रहा है, जिनको हम आमतौर पर मज़्ज़ूब अली भी कहते हैं। ज़ू तिब्रैन, जिनका लिबास फटा और बोसीदा, ला युबाहू लहू, और जिनकी कोई परवाह नहीं की जाती, जिनकी कोई अहमियत नहीं लोग मानते हैं, जिनको कोई अहमियत नहीं देते। लेकिन मकाम क्या है? सरकार कहते लो अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा, मगर उनका मकाम यह है कि अल्लाह पर एतमाद करके किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी बात को पूरा फरमा दे, उनकी बात को अल्लाह नहीं ठुकराता है। ये है वो जन्नत के बादशाह जिनके बारे में अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह इनकी हर बात को पूरी फरमाता है, इनकी कोई बात को नहीं ठुकराता। अब जन्नत के जो बादशाह है, आप इनसे करीब होंगे तो जन्नत के रास्ते पर गामजन हो जाओगे, जन्नत से जुड़ जाओगे। उसी को हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया, चुनांचे मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि सरकार फरमाते हैं, सरकार के पास एक सहाबी आते हैं और इसके रावी भी अनस इब्न मालिक है, और आके कहते या रसूलल्लाह, वो सहाबी कहते हैं जो अरबी बद्दू सहाबी थे, कहते हैं अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के नबी मत्तसा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की नबी कयामत कब आएगी? तो सरकार ने फरमाया कयामत के बारे में पूछते हो तो ये बताओ कयामत के लिए तुम्हारे पास क्या तैयारी है, कयामत की तैयारी क्या है? तो साहब अर्ज करते कि या रसूलल्लाह, कयामत की मेरे पास कोई खास तैयारी नहीं है, मेरे पास नमाजें उतनी कसरत के साथ नहीं है, मेरे पास इबादत की कमी है, इबादत में ज्यादा नहीं कर पाता हूं। लेकिन अल्लाह के नबी मामला ये हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूं, अल्लाह रसूल से मुझे बड़ी मोहब्बत है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, सुन लो, मन अंत मोहब्बत, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका हश्र किया जाएगा, जो जिससे मोहब्बत करता है। तो अब आप औलिया से मोहब्बत करेंगे, नबी के ये आल में है, ये जन्नत के मालिक है, तो जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका हश्र किया जाता है। ये मॉनिटर क्यों बंद हो गया है? किसी ने वायर हिला दिया है क्या भाई? वायर हिला दिया है किसी ने? देखिए, हाँ किसी ने। चलिए, मैं वो किताब दिखा रहा था लेकिन अब वो और गया, मैं जबानी दिखाता हूँ मोहब्बत का नतीजा क्या होता है। ये गौसे पाक का जिक्र करते हुए हम आगे बढ़े। ये मेरे हाथ में किताब है, इसको मैं अभी मॉनिटर पे भी दिखा दूंगा। किताब का नाम क्या है? हजरत थानवी के पसंदीदा वाकयात। क्या नाम है? हजरत थानवी के पसंदीदा वाकयात। देवबंदी जमात और तबलीगी जमात के बहुत बड़े आलिम गुजरे, हकीमुल उम्मत ये लोग इनको कहते हैं। उनकी ये किताब है, जो उनको बहुत पसंद थे वाकयात, उन्होंने उन वाकयात को इस किताब में जमा कर दिया। बड़े पसंद थे उनको वाकयात, तो जो पसंद थे उन्हीं पसंदीदा वाकयात में एक वाकया क्या है जरा सुन लीजिए। आप इधर तवज्जो दीजिए, वो देखते रहेंगे उधर, आप इधर देखिए। पसंद ये है कि सफा नंबर इसका 42 से 42। तो थानवी साहब कहते हैं कि गौस पाक का एक धोबी था। कौन था? धोबी। वो क्या करता था? गौसे आजम के कपड़ों को धोया करता था। गौसे पाक का मुरीद नहीं था, गौसे पाक का शागिर्द नहीं था, गौसे पाक से कुछ सीखा नहीं था, सिर्फ यही काम करता कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम की खिदमत में आता, उनकी अहलिया से कपड़े वगैरह ले जाता, मैले कुचले ले जाके धो धाला के साफ सुथरा करके ला देता। उसका इंतकाल हो गया। थानी साहब कहते हैं कब्र में गया, कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर आए, पूछा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो कहता है गौस पाक का धोबी। कहा मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो जवाब दिया गौस पाक का धोबी हूं। फिर फरिश्तों ने पूछा मा कुंता तक़ूलु हक़्क़ु फी हाज़ा रजुल, तो दुनिया में इस शख्स के बारे में यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? कहा गौस पाक का धोबी हूं। तो फरिश्तों ने अर्ज किया खालिक कायनात किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक दो ही बंदे मिले, एक तो कहते थे हा हा ला अदरी, हाय हाय अफसोस हम नहीं जानते कौन है ये, रब क्या है, दीन क्या है, रसूलुल्लाह कौन है, हम नहीं जानते। और दूसरे जो होते मुसलमान मोमिन होते, वो कह देते दीन इस्लाम, रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है, ये रसूलुल्लाह हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल है। मगर ये कौन सा बंदा है? हर सवाल पे कहता है गौस पाक का धोबी हूं, गौस पाक का धोबी हूं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया फरिश्तों, इसने गौसे आजम मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के, मेरे शेख अब्दुल कादिर के कपड़ों के मैलों को साफ किया, मैंने इसके गुनाहों को साफ कर दिया है, जाओ मैंने इसे बख्श दिया। थानवी साहब कहते दोनों मुनकर नकीर मुस्कुराते हुए चले गए। मुझे ये नहीं पता थानवी साहब ने कब्र की हालत कैसे जान ली है,
क्योंकि उन्होंने कोई हवाला नहीं दिया कि किस किताब से ये उन्होंने वाकया पढ़ा है। अब अगर वो कहें बिल फर्ज देवबंदी थोड़ी जुस्तजू करे कि थानवी साहब को पसंद तो वाकया बहुत था ये, अब पसंद था, लेकिन बहरहाल उन्होंने लिखा कहां से, और कोई ला के कहे कि फुला इमाम ने लिखा। मैं कहूंगा ताज्जुब की बात है यार, इमाम की वाकये के अंदर के तुम गैब को तो मानते हो, रसूल के गैब को क्यों नहीं मानते? तो थानवी साहब ने लिखा नहीं, लेकिन बहरहाल अभी मौजू मेरा वो नहीं है। मेरा मौजू तो ये है, चालू नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, हाँ हो गया। मेरा मौजू तो ये है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ। तो ये बात सिर्फ हदीस से ही साबित हो नहीं होती, बल्कि थानवी साहब के भी कौल और अकीदे से साबित हो रही है बात, कि थानवी साहब भी मानते हैं कि जो जिससे मोहब्बत करता है, वो गौस पाक का धोबी था, गौस पाक से मोहब्बत थी, उसके एवज बख्श दिया गया, तीनों जवाब दिए, उसके कामयाब मान लिए गए। तो अब जब मोहब्बत का यह आलम है, तो अब उसका बरक्स मोहब्बत जब नजात देती है तो बुग़्ज़ क्या जहन्नम में नहीं ले जाएगा? बात समझ में आ रही है? अरे भाई, जब मोहब्बत जन्नत में जाने का सबब है, तो उन्हीं जातों से अगर कोई हसद और बुग़्ज़ रखे तो जहन्नम में नहीं जाएगा, उसका बरक्स यही होगा ना। अब आइए, आज इन औलिया इकराम थे जिनका इस्लाम पर, जिन्होंने इस्लाम देकर हम पर एहसान किया, हिंदुस्तान की जमीन पर एहसान है, उन औलिया के बारे में इनके लबो लहजे कैसे हैं। मैं पहली एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, और यहां से फिर हम गुफ्तगू बिल्कुल सीरीज वाइज करेंगे इंशाल्लाह। ये मौलाना महराज रब्बानी साहब है, जो भी मॉनिटर पे आपको दिखेंगे। और सुनो मुसलमान, ये मौलवी महराज रब्बानी है, इनको आप शायद जानते भी होंगे। ये यूपी के रहने वाले थे, सऊदिया में चले गए क्योंकि वहां कमाई आजकल ज्यादा है। तो पहले किसी जमाने में ये सही मजहब व मसलक पर थे, रियालों की चमक ने इनको गुमराह कर दिया। नतीजा क्या हुआ? बड़े बड़े वलियों की ऐसी तौहीन करते हैं जितनी अपने बाप की भी कभी नहीं की होंगी इन्होंने। बाप का मकाम तो बहुत ऊंचा है इनके यहाँ, बाप का नाम बड़े अदब से लेंगे, अब्बू जान, बाबा जान, अब्बा हुजूर, मगर वलियों के बारे में इनके लब लहजे इतने गंदे हैं। आइए उनकी क्लिप सुने कि वो औलिया जिन्होंने मुसलमानों पर, इस्लाम पर एहसान किया है, इनके लब लहजे में उनका दर्जा क्या है, जरा सुन लीजिए। और सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो, इस्लाम में कोई कुतुबियत नहीं है, याद रखो। इस्लाम में कोई कुतुब नहीं, कोई गौस नहीं, कोई वतद नहीं, न कोई औताद, न कोई नजीब, न कोई नजबा, न कोई यत्तिया, न फत्तिया, कछ नहीं। ये सब यहूद और नसारा की ढकोसलेबाजियां हैं। डरो मत, डरो मत, डरोगे ऐसे ही जलील होते रहोगे, ऐसे ही जलील होते रहोगे। कोई कुतुबियत फतबियत नहीं है, सब जूते की नोक पे। इस्लाम में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत नाजिल की है, उस शरीयत में कहीं कुतुब का नामो निशान मौजूद है? फातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। ये कहते हैं कि इस्लाम में कुतबियत, अब्दाल, ये कुछ भी नहीं है, सब जूते की नोक पर। जुमले सुने कि नहीं आपने, कि मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूं ना, सब जूते की नोक पर। ये सब यहूद और नसारा से आए हैं, इस्लाम में सब ढकोसलेबाजी है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। डरो मत, ये अपनी अवाम को बोले डरो मत, बहुत बड़े गुस्ताख बन जाओ, डरो मत। अब सवाल यह है, इसके जवाब में मैं एक बात अर्ज करूं कि अगर इन्होंने नहीं देखा या इन्होंने नहीं पढ़ा, तो इनका ना पढ़ना, ना देखना, ना होने की दलील होगा। अरे भाई, मैं पहली बार आया हूं इंदौर,